Assalamualaikum. Hello and welcome to another exciting video on CS circuit. Well, today I'm here with new video and it's about computer science grade 11th और बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की एक्सरसाइज को, ठीक है, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को और एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर्स को, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल. So without wasting your time, I'm gonna start this video. Here you go. MCQ number 1 is computer programs are characterized into option number A is right, interactive program in batch program. MCQ number 2 is Python was first introduced in basically Python was introduced in 1992, so option number C is right. MCQ number 3 is operator exclamatory sign and equals to is used for basically प्रोग्रामिंग में ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन को हम यूज़ करते हैं ये होता है बेसिकली नॉट, ठीक है, और इसके साथ जब इक्वल टू का साइन लगता है तो दैट मीन्स नॉट इक्वल्स टू. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, नॉट इक्वल. Okay, MCQ number 4 is we can design 2D geometrical shapes in Python using option number D is right, turtle graphics. Right, so MCQ number 5 is what will the following program do? For I in range 10, 0, -1 colon print iteration number, I. Okay, basically this program will run 10 times. Alright. MCQ number 6 is the interactive computer program accepts some input which is from a user program like option number A is right, सब program के form में होते हैं, ठीक है. MCQ number 7 is dash provide basic variables types as str, string, integer and float, etc. So basically Python provides basic variables like these, right? So MCQ number 8 is the input function treats the enter data as a set of dash. Option number B is right, characters. MCQ number 9 is Python provide the option of modular operator represented as. Modulus operator को basically हम जो है वो percentage के sign से denote करते हैं. So the option number D is right. Okay. MCQ number 10 is double steric is used to represent एक्सपोनेंशिएशन. बेसिकली जो सिंगल स्टेरिक है उसको हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है. सो डबल स्टेरिक इज़ यूज फॉर एक्सपोनेंशिएशन नोटेशन. ओके. MCQ number 11 is if the program is unable to execute the next instruction, the program will reach the state of dash. Option number A is right, हैंग की स्टेट कहा जाता है इसको, ठीक है. MCQ number 11 is we apply comparison with the help of dash statement. Comparisons के लिए basically हम जो है वो conditional control structures को use करते हैं, ठीक है, and basically it's if. So option number C is right. MCQ number 13 is in online IDEs we can write and run our code without dash in our computer. IDE basically इसका जो मतलब है IDE stands for इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ठीक है, और IDE को हम यूज़ करते हैं बेसिकली कोड्स को जो है वो परफॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए, ठीक है. सो जब हमारे पास ऑनलाइन IDEs होते हैं उसमें अगर हम जब अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जो है वो डीबग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अपने सिस्टम में IDE को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर A इज़ राइट. Okay, MCQ number 14 is IDE stands for option number C is right, integrated development environment. MCQ number 15 is turtle graphics help us to design basic drawing in. Option number B is right, 2D graphics or 2D shapes. Option number MCQ number 16 is REPL means. Option number C is right, read, eval, प्रिंट लूप. एवल मीन्स बेसिकली एवेल्यूएट की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. ऑप्शन MCQ नंबर 17 इज टू ड्रा अ ट्राइंगल वी नीड टू प्ले विद. ऑप्शन नंबर B इज राइट, वर्टिसेस.
Last MCQ is bug is an unanticipated error which is generally dash in nature. Bug is basically logical in nature. Okay, option number C is right. Okay, now we have short question answers. So let's start with first one. What are the applications of computer programming in daily life? अच्छा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की अगर हम डेली लाइफ में एप्लीकेशंस देखें हैं तो बेशुमार एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन में जो है अगर हम बात करें तो हम जैसे कि मैसेजेस की जो मैसेजिंग की एप्लीकेशंस हैं लाइक व्हाट्सएप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हमारे पास हैं फेसबुक इंस्टाग्राम, तो कम्युनिकेशन में भी प्रोग्रामिंग जो है वो यूज़ हो रही है, ठीक है। अगर आप इसको एक और तरह से देखें, लाइक आपने देखा होगा, आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जब आप फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप जब डिफरेंट रील्स को देखते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास एल्गोरिदम होता है, लाइक अगर आप एक सेकंड के लिए भी एक रील पे स्टे करते हैं, ठीक है, ये 2 सेकंड्स के लिए भी, तो आपको सेम टाइप ऑफ डेटा जो है वो शो होने लगता है, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे भी जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही होती है, ठीक है। फाइनेंस में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन बैंकिंग में, बजटिंग एप्स में, उसके अलावा अगर हम बात करें जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम बात करें तो ट्रैफिक सिग्नल्स को कंट्रोल करने के लिए, नेविगेशन ऐप्स की अगर हम बात करें, गूगल मैप्स की अगर हम बात करें, राइड शेयरिंग सर्विसेज जो होती हैं, उबर है, करीम है जैसे, तो इसमें जो है वो प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, ठीक है। ई लर्निंग की प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात कर लें। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ write code to take input a number from user and print its mathematical table on screen from 1 to 10. ओके, अच्छा, इस कोड में हमने करना क्या है कि यूज़र से हमने इनपुट लेना है, ठीक है, और बेसिकली हमारे पास जो है वो मैथमेटिकल टेबल आना चाहिए जो है 1 से 10 तक। अब यूज़र कोई भी नंबर इंटर कर सकता है, यूज़र कैन इंटर 5 6 2 1 4 9 वट एवर यूज़र वांट टू, ठीक है। अब हमारे पास जो नंबर है, हम एक इनपुट करवा देंगे उसको, जस्ट लाइक स्टेटमेंट इंटर अ नंबर, ठीक है। फिर उसमें हम जो है वो जो भी कोई मल्टीप्लिकेशन का टेबल होगा उसको हम शो करवा देंगे। फॉर आई इन रेंज 1,11, बेसिकली आई फॉर क्या है, आपके पास फॉर लूप लगी है यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट नंबर इंटू आई, नंबर इंटू आई से मुराद यहाँ पे ये है कि वो जो नंबर है 1 से 10 तक, 10 तक ही यहाँ पे हमारे पास शो होगा, ठीक है, इक्वल्स टू नंबर इंटू आई। तो इसकी अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जब आपके पास, जब आप इस कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, तो जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट होगी 1 से लेके 11 तक, और ये जो बेसिकली इसकी आइट्रेशन से कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब जो लूप के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ हो रहा है, इसमें बेसिकली नंबर इंटू आई इक्वल्स टू नंबर इंटू आई, बेसिकली ये आपके पास जो हर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिज़ल्ट दे देगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमने इंटर किया है एक नंबर 9, 9 की जगह आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल जो है वो 9 का, वो 9 इंटू 1 2 3 4 एंड अप टू 10 तक आपको शो रहा है, ठीक है। ओके, MC question number 3 is take an odd number as input from the user, check if it is odd, otherwise ask the user to re-enter an odd number. अच्छा, इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि एक ऑड नंबर लें, ठीक है, और उसको एज ए यूज़र से इनपुट लें आप, और देखें कि क्या वो नंबर ऑड है या नहीं। अगर तो वो नहीं है तो यूज़र को मतलब ये मैसेज जो होना चाहिए कि ऑड नंबर को री एंटर करें, ठीक है। वाइल स्टेटमेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, एक नंबर इसकी हम जो है वो यूज़ करें। अगर तो नंबर का जो है वो रिमाइंडर है 2 n mod 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो नंबर आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ हो जाएगी, यहाँ से हमारा कोड एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं है, तो नंबर जो है वो ऑड नंबर नहीं है, री एंटर करना पड़ेगा यूज़र को, ठीक है। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ राइट डाउन द मेन एग्जांपल्स ऑफ पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन। ओके, पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस बेसिकली बेशुमार हैं, जहाँ यहाँ पे मैंने कुछ को मेंशन किया है। फर्स्ट वन इज़ वेब डेवलपमेंट, सेकंड इज़ डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग,
थर्ड वन इज़ स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन, फोर्थ वन इज़ साइंटिफिक कंप्यूटिंग, फिफ्थ वन इज़ गेम डेवलपमेंट। अच्छा, वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डिफरेंट जो है वो फ्रेमवर्क्स अगर हम बात करें इनकी, ठीक है, और डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस की बात कर लें। डेटा साइंस में अगर हम बात करें तो जो पाइथन की लाइब्रेरीज यूज़ होती हैं जैसे कि नमपाई है, पांडास है, उसके अलावा टेंसरफ्लो है, पाईटॉर्च है, डिफरेंट जो लाइब्रेरीज़ हैं बेसिकली ये यूज़ होती हैं डेटा एनालिसिस के लिए, जो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग की टास्क के लिए, ठीक है। स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन की अगर हम बात करें तो जैसे कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग में अगर हम बात कर लें, टेस्ट ऑटोमेशन की अगर हम बात करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देख लें तो इसमें जो है वो पाइथन बेस्ड एप्लीकेशंस जो है वो मेन एक रोल प्ले कर रही हैं, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग की अगर हम बात कर लें तो बेसिकली जो है वो फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में और भी बहुत सारे जो 20 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम गेम डेवलपमेंट की बात करें तो पाइथन की जो कुछ स्पेसिफिक लाइब्रेरीज़ हैं, पाई गेम है जैसे कि पांडा 3D है, तो ये डिफरेंट जो है वो आपके पास एनिमेटेड, उसके अलावा जो है वो स्ट्रॉन्ग गेम्स को डेवलप करने में यूज़ हो रही हैं, ठीक है। Question number 5 is differentiate between global and local variables with the help of suitable example. Okay. अगर हम पाइथन की बात करें तो ग्लोबल वेरिएबल बेसिकली जो है वो basically these are defined outside of any function and can be accessed throughout the entire program, और इनको बेसिकली हम जो है वो इनसाइड भी एक्सेस कर सकते हैं और आउटसाइड फंक्शन भी, ओके। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल मेंशन की है x इक्वल्स टू 10, दिस इज़ बेसिकली अ ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और अगर हम लोकल वेरिएबल की बात करें तो बेसिकली दीज आर डिफाइंड विद इन अ फंक्शन एंड कैन ओनली बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन दैट फंक्शन स्कोप, ठीक है। अब ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं इनको हम आउटसाइड द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो पहले जो फंक्शन डिफाइन किया गया है, ठीक है, y इक्वल्स टू 20, दिस इज़ बेसिकली अ लोकल वेरिएबल, ओके। नाउ वी हैव एक्सटेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्लेन द एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन इन डिफरेंट बिजनेसेस एंड टेक्निकल डोमेन्स। इस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बेसिकली जो है वो वेब डेवलपमेंट में यूज़ होती हैं, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में, डेस्कटॉप जीयूआई एप्लीकेशंस में, ठीक है। उसके अलावा स्क्रिप्टिंग एंड ऑटोमेशन में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, गेम डेवलपमेंट में और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, ठीक है, डिफरेंट सेंसर्स को एम्बेड करने के लिए। बेसिकली ये IoT आई गेस एक एडिशनल जो है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा जितने भी हमारे पास जो 5 और 6 मेंशन है एप्लीकेशंस के हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी आर मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस दैट लिस्ट प्रोवाइड्स, एलेबोरेट ईच ऑफ देम विद एन एग्जांपल। लिस्ट बेसिकली जो है वो डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 6 को मेंशन किया है। LEN फंक्शन यूज़ होता है बेसिकली टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को बताने के लिए जो लिस्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं। देन वी हैव मिन एंड मैक्स फंक्शंस, ठीक है। मिन और मैक्स के जो फंक्शंस है बेसिकली स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करने में हेल्प आउट करते हैं। देन वी हैव सम फंक्शंस, जितने भी हमारे पास लिस्ट में एलिमेंट्स हैं उनको सम कर देते हैं, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन में हम अपनी लिस्ट में जो है वो किसी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। और सॉर्ट फंक्शन के थ्रू हम एलिमेंट्स जो हमारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, ठीक है, उनको जो है हम एग्जैक्टली सॉर्ट कर सकते हैं जिस ऑर्डर में हम करना चाह रहे होते हैं। रिमूव फंक्शन के थ्रू जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को हम लिस्ट से। और इनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल ली गई है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। नंबर्स हमारे पास 5, 3, 8, 2, 1। अब हम इसकी जो है वो लेंथ कैलकुलेट करेंगे लेंथ फंक्शन के थ्रू, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं मिन मैक्स के फंक्शन के थ्रू, ठीक है। फिर हम इनका सम फाइंड कर सकते हैं। सम का जो फंक्शन है लाइन नंबर 11 में वो मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा जो 13 है अगर आप वहाँ पे देखें तो न्यू एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं इंसर्ट फंक्शन के थ्रू, ठीक है।
एंड देन 16 में हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम फॉर डाइस रोलिंग रेस game for 2 players. Alternatively, generate a random number for each player. If the number rolls out to be 6, then the player gets another roll. Rolls of every iteration is summed up to previous rolls. The player who reaches 100 first wins. Alright. बेसिकली इसको हम जो है वो इसकी एक कोड है पाइथन में, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको कोड को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमने लिखा है इम्पोर्ट रैंडम। इम्पोर्ट रैंडम बेसिकली हमने इसलिए लिखा है क्योंकि वी बेसिकली नीड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, ओके, ठीक है। फिर हमारे पास है डेफ रोल डाइस। डेफ रोल डाइस मीन्स कि हेयर वी डिफाइन अ फंक्शन नेम्ड रोल डाइस के नाम से हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया है, ठीक है। देन वी हैव रिटर्न रैंडम रेंडेंट 1,6, ठीक है। कोई हमारे पास जो रैंडम नंबर्स हैं, ठीक है, मतलब कि इसमें यह है कि जो फंक्शन है हमारे पास वो कोई रैंडम नंबर्स को जनरेट करेगा और वो रैंडम नंबर्स जो रैंडम इंटीजर्स होंगे वो बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होंगे, 1 से लेके 6 तक होंगे, ठीक है। एंड देन इट विल रिटर्न दैट जनरेटेड रैंडम नंबर्स एज द आउटपुट ऑफ द फंक्शन, ओके। फिर हमारे पास है डेफ डाइस रेस गेम, बेसिकली इट्स आल्सो फंक्शन नेम डेफ डाइस रोल, ओके, सॉरी डाइस रेस, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस हैं, बेसिकली वाइल लूप को लगाया गया है, वाइल प्लेयर 1 अंडरस्कोर टोटल लेस देन 100 एंड प्लेयर 2 अंडरस्कोर टोटल लेस देन 100, ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि इफ़ डाइस रोल इज़ इक्वल्स टू 6, ठीक है, तो हम क्या जो है वो मैसेज शो करा दें कि जो आपका करंट प्लेयर है रोल्ड अ 6 एंड गेट्स अनदर रोल, उसके पास यानी कि जो है वो 6 आ गया और उसके पास एक और चांस है कि वो नेक्स्ट टाइम भी रोल कर सकता है, ठीक है। एडिशनल रोल उसके पास है जब, तो हम प्रिंट ऑफ करवा देंगे कि करंट प्लेयर रोल इन एडिशनल रोल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे उसके पास एक क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब जो करंट प्लेयर है अगर तो वो जो है वो 1 है, ठीक है, तो प्लेयर अंडरस्कोर टोटल और उसमें जो है आपके पास आ जाएगा, उसके पास एडिशनल रोल था चूँकि इस वजह से, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है वो दूसरे प्लेयर के लिए भी कंडीशन, प्लेयर 1 के लिए भी हमने कंडीशन लगा दी और यही कंडीशन हम प्लेयर 2 के लिए भी लगा देंगे, ठीक है। अगर तो जो प्लेयर 1 है उसका जो टोटल है वो ग्रेटर देन है 100 से, ठीक है, दैट मीन्स प्लेयर 1 विंस। अगर तो जो टोटल है वो लेस है, ठीक है, ऐसा अगर नहीं है तो प्लेयर 2 विंस, ओके। यानी कि अगर प्लेयर 2 की जो टोटल है वो ग्रेटर देन है 100 से तो ऑब्वियसली प्लेयर 2 विल विंस, राइट। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिख दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ टू लोकेट एंड सेट debugger in IDE integrated development environment. Write steps by taking an example into consideration. बेसिकली जो है IDE को सेट करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। सबसे पहले हम जो है वो प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे, कोड को जो है वो हम लॉन्च करेंगे, ठीक है, और पाइथन का जो प्रोजेक्ट हमारा जो फोल्डर है उसको ओपन करेंगे। स्टेप नंबर 2 इज़ नेविगेट टू द डीबग व्यू, क्लिक ऑन द डीबग आइकन, ओके। जो स्टेप नंबर 3 है इट्स स्टेप सेट ब्रेक पॉइंट्स, ठीक है। आप जो है वो पाइथन की फ़ाइल को ओपन कर लेंगे, लेट्स सपोज ये एग्जांपल मेंशन है, ठीक है, और जहाँ पे आप सेट ब्रेक पॉइंट्स को सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर आप लेफ़्ट साइड गजर नेक्स्ट पे जो है वो क्लिक कर देंगे, ठीक है, एंड यू विल बेसिकली क्लिक टू द नेक्स्ट लाइन नंबर टू सेट अ ब्रेक पॉइंट, ओके। रेड डॉट जो है वो बेसिकली ब्रेक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। And step number 4 is start debugging. Basically it's the process of removing errors, so you will press F5 or click the green play button in the debugs views toolbar, okay। यहाँ से आप जो है पाइथन का इन्वायरमेंट को जो है वो सेलेक्ट कर देंगे, ठीक है, और बेसिकली क्रिएट अ लॉन्च .json कन्फिगरेशन फाइल इफ़ प्रॉम्प्टेड। डिबगिंग कंट्रोल्स में जो है आपका जो कोड है इट विल बेसिकली इन रन इन डिबग मोड,
pausing at the break points you set, okay. उसके अलावा basically you can use control like step over F10, step into F11 and step out. ये तो चीज़ें आपको आई गेस ऑलरेडी भी पता होंगी, ठीक है. एंड स्टेप आउट के लिए शिफ्ट प्लस F11 टू नेविगेट थ्रू योर कोड, ओके. नाउ लास्ट क्वेश्चन वी हैव राइट. नाउ बेसिकली जो लास्ट क्वेश्चन हमारा है वो है राइट कोड टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 10 numbers in first 10 even numbers, first 10 odd numbers in first 10 even numbers and find the difference of the two. हिंट हमारे पास है यूज़ फंक्शंस. ऑलराइट, बेसिकली यहाँ पे जो है वो हम डिफ़ाइन कर देंगे दो फंक्शंस को, ठीक है. हमारे पास जो कि पहला है मल्टीप्लाई फर्स्ट इन ऑड नंबर्स, ठीक है. देन वी हैव जो सेकंड हमारे पास है मल्टीप्लाई फर्स्ट इन इवन नंबर्स, ओके. ऑड नंबर्स के लिए हम जो है प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट को 1 से इनिशलाइज करा देंगे, काउंट को 0 से, नम को 1 से, ठीक है. और वाइल की हमने यहाँ पे लूप लगा दी है, ठीक है. अब हम यहाँ पे जो है वो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो 10 ऑड एंड इवन नंबर्स की किस तरह से होगी. ऑड मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स 10 आ जाएंगे यहाँ पे भी, और इवन की मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ओके. अब हम जो इनका डिफरेंस है वो किस तरह से फाइंड करेंगे. बेसिकली डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू ऑड मल्टीप्लिकेशन माइनस इवन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. एंड देन वी विल प्रिंट रिजल्ट्स. बेसिकली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स, ठीक है. ऑड मल्टीप्लिकेशन शो हो जाएगी इस तरह से, आपके पास इवन नंबर्स के लिए इवन की शो होगी, और देन डिफरेंस ऑफ द टू, ओके. यहाँ भी इसकी एक्सप्लेनेशन को भी जो है वो अगेन मेंशन किया. ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट programming fundamentals exercise. I hope this video will be helpful for you. But if you have any query, any ambiguity, you can let me know in comments, okay. And do not forget to like, share and subscribe as well. अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.